Coco Chanel once said, "A girl should be two things, who and what she wants," and my guest today has that clarity. After impressing the audience with her acting skills, she has won hearts for her appearance in the reality show Bigg Boss. As she continues to make an impact, we sit down to speak about her journey, life, and goals. Welcome to Baatein Ankahi with Priyanka Chahar Chaudhary. Priyanka, welcome to Pink Villa. Thank you. So, before we start the conversation and we dig deep into your journey, there's a small surprise for you. So there's What someone. is this? I love surprises. I You think do? सबको पसंद है. हाँ. So there's someone who sent a message for you, Oh, and I'm going to play it for you. Should we do it? Yes, please. Let's go for it. कौन है? फैंस का मैसेज है कि जान पहचान का? जान पहचान का. Play it. Let's go for it. Hey guys, so the bond that me and Priyanka share is very special. It's a very special bond, as everybody knows. लाइफ में आपको बहुत मुश्किल से ऐसे लोग मिलते हैं जिनके साथ आप you can be yourself and you feel secure and safe. And luckily I found that person. I found that person in Priyanka, and I'm so happy and I'm so lucky to have her in my life. And she's very hardworking. She's very persistent. I love that about her, and she's very clear in her head what she wants and where she wants to go. I love when she smiles. I love when she laughs. She looks the beautiful when she laughs, and if I'm the reason behind her laughter or smile, I feel very good. I feel very happy, and I mean the kind of bond we share, it cannot be described in words. It is something that you feel, and it is a very special bond. I just want her to be happy, and she always smiles and laughs like that, always. भेज दो मुझे ये प्लीज. जी मैं बिल्कुल भेजता हूँ. And this is with help of Anjali. She helped me. And this is actually a surprise for me. You You didn't know know why? at all, really? Yeah, and it is a big surprise. Why? Because I talk to this person almost every day. I talk to Ankit almost every day, and then उसने मुझे कुछ नहीं बताया कि मैंने ऐसा कुछ भेजा है वॉइस नोट या एनीथिंग. बट दिस इज सो स्वीट ऑफ हिम. एक जमाना था जब आपको कंप्लेंट थी कि ये एक्सप्रेसिव नहीं थे. अब काफी एक्सप्रेसिव है. हाँ, अब काफी एक्सप्रेसिव है. चलो वो बोलते हैं ना बचपन में मम्मी पापा बोलते हैं संगति का असर होता है, तो ये संगति का असर थोड़ा सा हो गया उस पर. तो फाइनली वो थोड़ा सा अब बोल देता है, क्योंकि मैं बहुत इरिटेट हो जाती थी. वो शांत, आपने देखा ही होगा जी. शांत बैठे रहना, वैसा लगता था मैं दीवार पे अपना सर बजा रही हूँ, लग रहा है कुछ आगे से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है. बट नाउ फाइनली ही इज़ लाइक अ डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट अंकित. ऑफ कोर्स चेंज नहीं करना चाहूँगी मैं उसे, बट थोड़ा सा अ गुड चेंज. या I can see your eyes well up. I know. I was trying to hide it. No, it is very special, and we'll talk more about this also. But before that, let's start talking about your journey. I want to start by asking, when you came out of the house, and you must have seen a lot of clips. I'm sure that there must be some urge to go and see some of the episodes also. When you saw it, would you have done anything differently? Honestly, अविनाश, मैंने ना कोई वो तो नहीं देखा कोई शो का. मतलब मैंने खुद जाकर बिग बॉस का कोई वो एपिसोड नहीं देख पाई, बिकॉज इतना टाइम भी नहीं मिला. लकीली ना ही टाइम मिला, अच्छा बिजी रहे. बट हाँ, मैंने देखा नहीं है. लेकिन क्लिप्स में अगर मैं देखूँ तो ऐसा कुछ है नहीं कि जो मैं कुछ अलग कर पाती, क्योंकि आई थिंक हाँ, अगर मैं ये सोचूं कि अगर अब मैं जाती बिग बॉस तो शायद अब मैं बिल्कुल ही गलती ना करती. वैसे मेरी पहले भी ज़्यादा गलतियाँ हुई नहीं थी जी. बट शायद अब मैं बहुत ही कम गलती करती, डेफिनेटली. लेकिन एक चीज़ जो मुझे बाहर आने के बाद जो मैंने एक क्लिप देखा था, वो मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा था कि यार मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ इस बात पर. जब अगर आप सबको ध्यान हो, एक भूख हड़ताल कर दी थी मंडली ने, एंड मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि यार ये लोग कुछ खा ही नहीं रहे हैं, सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया. आई वाज फीलिंग सो बैड. मैं सबके पीछे पीछे प्लेट लेकर घूम रही हूँ कि खा लो साजी जी प्लीज़ खा लो, शिव समझा इनको, सबको मैं बोल रही हूँ. बट देन
द टाइम आई केम आउट ऑफ द हाउस आई गॉट टू नो कि अच्छा वो अंदर पिज्ज़ा खा कर आए थे और मैंने उस टाइम पर उनके लिए पराठे बनाए थे कि चलो अब बिग बॉस से बात करने के बाद शायद ये मान जाएंगे, उनको वो दंड मिला था, मुझे लगा कि इनको खिला देती हूँ, मैंने उनके लिए पराठे बनाए हैं उस टाइम पर। फिर मैं उनके पराठे के लिए मैंने कहा थोड़ा सा खा लो, आप खा लो प्लीज़ खा लो, बट देन दे वर लाइक नहीं नहीं हमें भूख नहीं है। और फिर वो ये शो कर रहे थे कि हम तो ये दंड भी तुम्हारे लिए झेल रहे हैं वरना तुम्हारा राशन भी चला जाएगा अगर हमने पूरा नहीं किया तो। सो आई फेल्ट सो बैड कि मैं किसी के पीछे इतना ऐसे खाने के लिए ऐसे परेशान हो रही हूँ। वो लोग खा रहे थे बट ठीक है, अच्छी बात है उन्होंने खाया, भूखे भी क्यों रहना था। बट देन मुझे मेरे लिए लगा कि देखो मैं पीछे पीछे लेकर घूम रही थी और ये मस्त पिज्ज़ा खा के बैठे हैं बिग बॉस हाउस के अंदर, पिज्ज़ा इमेजिन। पर ये थोड़ा सा भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी हो जाता है ना, हाँ। जब मौका मिला बाहर आके बात करने का कि गेम खेलो पर शायद ये सही नहीं है। वैसे ये ना अविनाश, ये गेम खेलने वाला भी ना कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता मुझे बिग बॉस में, क्योंकि बिग बॉस इज़ नॉट अबाउट गेम, इट्स अबाउट डेफिनेटली वहाँ टास्क होते हैं, वहाँ पर आप अपने टास्क पूरे करते हो, दैट इज़ लाइक थोड़ा सा कॉम्पिटिशन फिजिकली और ये सब चीज़ों में आप इन्वॉल्व होते हो, बट बिग बॉस इज़ नॉट अ गेम। If you call it a game, no, then it's a personality game. How you are as a person. When I was in the house, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता था मैं टास्क जीतूँ ना जीतूँ, मैं कैप्टन बनूँ ना बनूँ, बिकॉज मुझे ये है कि मैं एज अ पर्सन कैसी हूँ लोगों को वो दिखना चाहिए, तो मुझे इतना फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ा। डेफिनेटली मैं कोशिश पूरी करती थी जीतने की, पर मुझे इस चीज़ को इतना कभी बुरा नहीं लगा कि शिट मैं टास्क नहीं जीती या नो मैं तो एक भी बार कैप्टन भी नहीं बनी, बट I didn't bother. Yeah. So it's like that. तो it's not a game, but it's a personality game. पर उसमें अगर कुछ गेम ऐड हो जाता है किसी का, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं सोचता है, तो ऑफ कोर्स वो उनका मे बी उनकी स्ट्रैटेजी है, वो उनका कॉन्सेप्ट है, वो वैसा सोचते हैं। पर मेरा दिमाग में कॉन्सेप्ट अलग था बिग बॉस का। लाइफ बहुत चेंज हुई बिग बॉस के बाद, बट एक ऐसा टाइम था जब आप सब छोड़ छाड़ के जयपुर वापस चली गई थी। हाँ, वो फेस कैसा था? मेरा ना फेस मैं कभी भी बुरे वे में लेकर नहीं जाती हूँ, जितना पता लगा होगा लोगों को। आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। मुझे लग रहा था कि नहीं यार एक्टिंग में नहीं हो रहा है कुछ, शायद नहीं हो पाएगा तुझसे व्हाटएवर, तो क्योंकि मैंने काफ़ी ट्राई कर लिया था, बहुत ट्राई कर लिया था। देन आई वाज लाइक कि देखो भाई कमाना तो तुझे है ही एट द एंड, सो नाउ व्हाट, बिकॉज एक्टिंग में नहीं इतना तेरे को कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, सो नाउ व्हाट यू कैन डू। तो मुझे तब मैंने फिगर आउट किया कि आई एम वेरी गुड इन मेकअप ऑल्सो, सो लेट्स गो विद द मेकअप थिंग कि मेकअप करना शुरू करते हैं। एंड फॉर दैट थिंग, मतलब फॉर मेकअप थिंग आई शिफ्टेड टू जयपुर, बिकॉज जयपुर में तो आई हैड द होल आइडिया इन माई माइंड कि वहाँ पर काफ़ी मैरिजेस वगैरह काफ़ी अच्छे होते हैं, ब्राइडल्स होते हैं। सो इस तरह से मैंने वो जर्नी वैसे शुरू करनी चाही थी। सो फॉर दैट आई शिफ्टेड टू जयपुर, बट तभी भी मैंने जयपुर में जाके भी आई वर्कड ऑन माई मेकअप एंड एवरीथिंग। फॉर 1 month आई वॉज देयर एंड 1 month में आई गॉट उडारिया देन। तो इतना कोई मैं वो नहीं बोलूँगी, बट डेफिनेटली स्ट्रगल होता है लाइफ में, काफ़ी स्ट्रगल होता है व्हेन यू प्लान समथिंग कि मुझे इस फील्ड में जाना, और उस फील्ड में आपका कोई जान पहचान का दूर दूर तक नहीं है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा होता है टू एंटर दैट प्लेस। बट ठीक है, आई थिंक सीखने को बहुत मिलता है जब ऐसी चीज़ें आप खुद करते हो, हर चीज़ आपने खुद की हो तो यू लर्न अ लॉट, बिकॉज हर चीज़ हर रास्ता आपने खुद बनाया है। बिल्कुल। जब हम बाहर से आते हैं तब हम कुछ उम्मीदों के साथ आते हैं। अब सिर्फ हमारी उम्मीदें नहीं होती, हमारे आसपास के जो लोग होते हैं उनकी भी हमसे बहुत उम्मीदें होती हैं। तो जब आप वापस जाती हैं तो थोड़ा सा डर लगता है कि यार उम्मीदें टूट गई। तो क्योंकि ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैंने थोड़ा बहुत किया था, तो हमारे परिवार के लिए उतना करना भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कभी उन्होंने टीवी पे किसी शख्स को ही नहीं देखा है जिसको जानते हो। अब उनके परिवार से अगर कोई टीवी पे भी आ गया तो उतना भी बहुत है। तो डेफिनेटली, और क्योंकि बिकॉज दे नो एवरीथिंग कि इसने अपने 12th के बाद में फैमिली को भी तो संभाला है साथ साथ, तो इसने उस तरीके से अपना जैसे भी जरिया बना के एंकरिंग से पैसे कमाने शुरू किए, देन एक्टिंग में जाना चाहा, इस तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। तो माय पेरेंट्स एंड एवरीबडी दे नो कि मैंने अपनी स्टडीज़ मतलब 12th के बाद में कॉलेज के साथ साथ आई स्टार्टेड अर्निंग फॉर टू सपोर्ट माई फैमिली, टू हेल्प माई फैमिली फाइनेंशियली। तो डेफिनेटली उनको कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं है। इनफैक्ट माई पापा इज़ लाइक कि मेरी इस, सो वी आर 6 सिबलिंग्स, तो 6 के 6 में से पापा बोलते हैं मेरी इस बेटी को ना मैं कभी भी लाइफ में किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, कभी दुख में नहीं देख सकता। तो ही इज़ लाइक दैट बिकॉज ही नोज़ कि हाँ इसने सपोर्ट करने के लिए ठीक है अपना गवर्नमेंट जॉब नहीं चुना, क्योंकि पापा तो गवर्नमेंट जॉब में डालना चाहते थे। मैंने वो चीज़ साइड में हटा के मैंने यहाँ से थोड़े से, बिकॉज इतने बड़े परिवार को संभालने के लिए मैं गवर्नमेंट जॉब, हालांकि बहुत अच्छा सारा अमाउंट मिलता है, बट स्टिल आई मीन टू सपोर्ट माई फैमिली आई वाज लाइक कि ये शायद मुझे ज़्यादा हेल्प करेगा। सो ही अंडरस्टैंड्स।
एंड फैमिली में आई थिंक सब अंडरस्टैंड करते हैं यार, बिकॉज उनको पता है कि कुछ गलत तो नहीं करेगी, जो भी कर रही है सोच समझ के कुछ अच्छा ही कर लेगी अपना, उन्हें भरोसा है कि ये कुछ अच्छा कर ही लेगी लाइफ में। तो एक्टर पहले से बनना था या बाय चांस हुआ? ना एक्टिंग का कुछ दूर दूर तक सवाल ही नहीं था। मतलब अच्छा, आफ्टर माई स्कूल मेरे को एंकरिंग का ऑफर आ गया था, तो मैंने एंकरिंग करनी शुरू की थी, तो दैट्स हाउ आई एंटर्ड इनटू द इंडस्ट्री। फिर वहाँ से ये जर्नी मेरी शुरू हुई। एंकरिंग करते करते मुझे एक बार ऑफर आया था, जर्मन मूवी के ऑडिशंस चल रहे थे जयपुर में। हाँ, तो उन्हें एक इंडियन प्रिंसेस चाहिए थी। सो आई वाज व्हाट 18-19 में भी, या तो उन्हें एक इंडियन प्रिंसेस चाहिए थी जिसके मैं ऑडिशन देने जाती थी। तो मेरे भाई वगैरह बहुत मजाक भी बनाते थे, बोलते थे कि सुन, उन्हें ना ऐसे इंडियन प्रिंसेस चाहिए, ऐसी नहीं चाहिए। ऐसे प्रिंसेस कैसी होती है, सुंदर सी, गोरी सी, एवरीथिंग। मैंने कहा शट अप। एंड देन लकीली आई गॉट सेलेक्टेड बिकॉज उन्हें यही चाहिए था, डस्की कॉम्प्लेक्शन, जैसे इंडियन प्रिंसेस हो, प्रॉपर वो इंडियन वाली बात हो। एंड देन आई गॉट सेलेक्टेड। वहाँ से मेरा इंटरेस्ट बना कि ओ माय गॉड इट्स फन, ये तो अच्छा है। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट बना था, और उसके बाद में टचवुड छोटा मोटा कुछ कुछ करते हुए एक्टिंग में भी देन आई स्टार्टेड ट्राइंग। इट वाज देन दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। पर जैसे आपने कहा कि 12वीं के बाद आपने घर को फाइनेंशियली सपोर्ट करना शुरू कर दिया, उस टाइम पे घर पे कुछ हालात ख़राब थे? हाँ डेफिनेटली थे। वी बिलोंग टू लाइक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, और पापा मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ उस टाइम पर, हमेशा से ही कटौती में देखते आए ना हम, हमेशा से। क्योंकि 6 और मेरी कज़न भी साथ में रहती थी, 7 बच्चों को एक आर्मी मैन पढ़ा रहा है, वो भी पापा ऑफिसर भी नहीं थे, सोल्जर थे, तो कितनी इनकम होती है। तो वो सब टाइम हम हमेशा से ही देखते हुए आए थे। तो मुझे ये पता था कि अब तो मेरी 12th हो गई है, पापा भी रिटायर हो गए हैं, अब यहाँ जयपुर में रहने के लिए तो हमें इतने सारे पैसे मिलेंगे नहीं, अब हमें जाना पड़ेगा गांव, क्योंकि पापा और सबका प्लान बन गया था कि अब कुछ नहीं कर सकते, इतने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, जो भी मतलब पढ़ाएंगे लिखाएंगे, पर यहाँ नहीं हो पाएगा कि जयपुर में घर कैसे बनेगा एंड एवरीथिंग। जब एक आर्मी मैन रिटायर होता है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो एक बेटी की शादी कर सकता है, एक घर बना सकता है। बेटी की शादी हो गई थी, अब घर के लिए भी इतना अमाउंट नहीं था। तो वहाँ से मुझे पता चला कि बेटा अब तेरे को कुछ करना है, चलो चक दे फट्टे। तो वहाँ से फिर मैंने स्टार्ट किया कुछ जॉब वॉब देखना, पर ठीक है जॉब शायद मेरे कभी था ही नहीं, कभी की नहीं जॉब। तो मुझे लकीली एंकरिंग का ही एक ऑफर आ गया था कि आप एंकरिंग करना चाहोगे। आई वाज लाइक यस डेफिनेटली। जब जिसमें मैंने कभी माइक नहीं पकड़ा था पूरे स्कूल में, बट आई वाज लाइक कि कुछ तो करना पड़ेगा ना, जाना यहाँ से नहीं जाना, गांव में नहीं जाना अभी। हाँ, इतना अच्छा प्लान था डेस्टिनी का इतने सालों से। टचवुड। बॉम्बे के शुरुआती दिन कैसे थे? डर लगा जब शुरू? अकेले आए थे या पापा थे साथ में? अकेले आए थे? हाँ अकेले। मतलब मैं हमेशा से अकेले ही जैसे ट्रैवल करना एंड एवरीथिंग, हमेशा से अकेले ही रही हूँ। और पापा भी इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। पापा हमेशा से बोलते थे कि मैं ऐसे होती नहीं कि मैं अकेले कैसे जाऊँगी। पापा बोलते क्यों अकेले क्यों नहीं जाएगी, कोई खा जाएगा बाहर, जा अकेले, बाहर नहीं निकलेगी तो दुनिया कैसे देखेगी। पापा ने हमेशा बोला कि अपना काम करो खुद करके। तो मैं अकेले ही डेफिनेटली अकेले आई थी अविनाश, लेकिन डर वाली ऐसी कोई बात मुझे नहीं लगी थी। थोड़ा सा जैसा सुना था कि मुंबई में जाकर थोड़े आप अलग हो जाते हो, ये सब वो सब, मुझे लगता है वो आप पे कंट्रोल होना चाहिए कि आपको अपना लाइफ ट्रैक किस डायरेक्शन में लेकर जाना है। तो मेरा डायरेक्शन मैंने हमेशा से काम की तरफ ही लेकर जाना चाहा, ज़्यादा इतना मुझे ज़्यादा पार्टीज़ में इन्वॉल्व होना नहीं था। तो डर नहीं लगा, बट थोड़ा सा लग रहा था कि काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बट देन मैंने कोशिश करना नहीं छोड़ा, तो मिल ही गया था। मतलब यहाँ आकर मैंने प्रिंट शूट स्टार्ट किए थे, तो प्रिंट शूट से थोड़ा सा वही की, वो तो अर्निंग के लिए थे, पर मुझे मेन पता था कि मेन तो मुझे अब एक्टिंग का कीड़ा आ चुका है, जाना तो उधर ही है। तो बस फिर कोशिश करती रही। ऑडिशंस मैंने सब ऑडिशंस देती थी, मैं नहीं छोड़ती थी ऑडिशंस कि कहीं तो कुछ होगा। मैं नहीं ऐसे आलसी बच्चों की तरह घर पे बैठूंगी और कुछ नहीं, मैं ऑडिशन सब देती थी कि कहीं तो कुछ होगा। कई बार हो जाता था, मॉक शूट तक पहुंच जाती थी, बट फिर मॉक शूट पर जाने के बाद नहीं होता था। एक बार तब फिर तो मेरे दिमाग में ये बैठ गया कि अगर मॉक शूट होगा तो मेरा सिलेक्शन तो नहीं है। ओ अच्छा। या तो ठीक है, कोशिश करते रहे तो आज यहाँ तक आ गए। जी, उडारियाँ is a milestone or a turning point? For me, उडारियाँ is a turning point. A turning point, trust me. मतलब जो मुझे भरोसा नहीं था कि मैं शायद I'm not like good into acting or something, मेरा वो थॉट बदल दिया कि नहीं, तू अपनी काबिलियत पहचान ही नहीं पाई थी। तो उडारियाँ इज़ अ डेफिनेटली टर्निंग पॉइंट फॉर मी, क्योंकि उडारियाँ से मुझे पता चला कि नहीं, तेरे अंदर है वो चीज़, यू आर एन एक्ट्रेस।
तो अच्छा कर लेती है। देन उडारियाँ हिट भी हो गया, टच जी, वुड, touch क्योंकि मुझे नहीं लगा था, मुझे ये लगा था कि मेरा फर्स्ट शो था उडारियाँ जी। एज लीड में, तो मुझे लगा था कि अगर मैं कर रही हूँ तो पता नहीं शो कैसे इन्होंने मेरे को ले लिया, अब किसी ने आज तक लीड में नहीं लिया, अब ये ले रहे हैं तो पता नहीं कैसा जाएगा, शायद चांस ले रहे होंगे, कैसा बन रहा होगा। बट डेफिनेटली पूरा टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए उडारियाँ। वो शो भी बहुत हिट हुआ, मतलब अच्छा, कलर्स का नंबर 1 शो है, अभी भी है इनफैक्ट, या तो शो भी बहुत अच्छा हुआ और मुझे अपने लिए भी दिमाग में आ गया कि हाँ है तेरे अंदर टैलेंट, जो तुझे डाउट हो गया था वो टैलेंट, वो जो डाउट था वो क्लियर हो गया था वहाँ से। क्यों आया था सेल्फ डाउट प्रियंका? क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा था ना, तभी तो जयपुर शिफ्ट हुई थी, इसीलिए कि शायद नहीं है, अच्छी एक्ट्रेस नहीं है तुम, इसलिए मैं जयपुर शिफ्ट हुई थी। वो डाउट मेरा उडारियाँ से क्लियर हुआ था। मोर पावर टू यू। इसी शो के दौरान आपकी अंकित से मुलाकात हुई। जब बिग बॉस का फिनाले नाइट था तब मैं उससे मिला था, तब मैंने उससे पूछा था ये रिश्ता क्या कहलाता है आप और प्रियंका का क्या कहलाता है? ये रिश्ता बिल्कुल एक प्यारी सी दोस्ती कहलाता है गाइस। मैं ऑनेस्टली बताऊं, ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। और सच में जो अंकित ने भी बोला था अभी इसमें ऑडियो में कि कुछ रिश्ते ना आपको पता नहीं होते। अंकित ने कभी नहीं सोचा होगा कि मेरी उससे इतनी अच्छी दोस्ती हो जाएगी। मुझे तो हमेशा से पसंद था, मेरे को उसको छेड़ना पसंद था, तो मेरे को अच्छा दोस्त पहले से लगने लग गया था वो। लेकिन वो लोगों से थोड़ा सा वैसे रहता है ना, डिस्टेंस पे रहता है। पर जब आप इतने ऑनेस्ट होते हो ना किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो काम हो, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे जो भी हो, जब आप किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ऑनेस्ट, वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात, हाँ, तो वही कि मैं अपनी तरफ से अपनी पूरी 110% दे रही हूँ दोस्ती में, बाकी इसका कॉल है। बट देन लेटर ही रियलाइज कि यार अच्छी है। हाँ। तो ये रिश्ता पूरा दोस्ती का है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। हमें कुछ होता है देखिए बहुत बार दोस्ती है लव इज फ्रेंडशिप प्यार दोस्ती हो सकती है, मे बी डेफिनेटली लोगों के लिए हो सकती है, बट आई कांट से एनीथिंग। मतलब ही इज अ फ्रेंड एंड वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग राइट नाउ बिकॉज ही इज बिजी इन हिज वर्क, आई एम बिजी with my work, so we both are working, we both are happy, we talk to each other, we tell each other कि क्या रहा, कैसा रहा तेरा दिन, so that's how we are, like we have a very good bond, good friends. Amazing. No, you all were recently spotted at an iftari party और immediately after that वापस शुरू हो गया। I know. क्यों they are dating, does these rumors get to you? देखो जो भी चलता है, rumors जो चल रहे हैं चलते रहने दो। एट द एंड देखो, सुनो सबकी करो मन की, सिंपल। एंड इट्स नॉट अबाउट सुनो सबकी करो मन की, बट आपको पता है कि क्या चीज़ है। अब वहाँ पर 10 जन जो भी बातें बोलेंगे वो वैसा सोच रहे हैं, शायद उनको वैसा दिख रहा है या जो भी है, बट हमें पता है कि क्या है सच जी। और आई थिंक वो हमें नहीं बताने की ज़रूरत है किसी को, जो 2 लोगों के बीच की बात है करके। तो ऐसे मुझे कभी बॉदर नहीं करते कोई भी रूमर्स या एनीथिंग। आई एम लाइक इट्स फाइन, ब्रिंग इट ऑन। Amazing. But love is such a beautiful thing, right? Are you open to it in the future? Maybe with Ankit, maybe without Ankit. Are you open to love? Are you open to finding love now? Definitely, but I don't believe, अविनाश, की ना ऐसे आप सोचते हो कि यार अब आई एम रेडी टू बी इन अ रिलेशनशिप और तब वो चीज़ काम करती है। इफ इट हैज़ टू हैपन, इट विल हैपन एंड यू विल, आपको पता भी नहीं चलेगा कौन कब क्लिक कर जाएगा। I agree. तो ऐसा नहीं कि हाँ अब मैं रेडी हूँ, नहीं, नथिंग लाइक दैट कि हाँ अब मैं शादी के लिए तैयार हूँ तो शादी के लिए लड़का ढूंढो, नहीं। जिससे मिलनी है वो वहाँ पर वो मिल ही जाएगा, बट उसके लिए आई कांट प्लान एनीथिंग और आई कांट से कि आई एम ओपन टू इट और एनीथिंग। आई मीन आई एम सिंगल, लेट्स सी कैसे जाती है चीज़ें एंड एवरीथिंग जो भी होगा। Sure. और फिलहाल लेकिन मैं अपने काम पे फोकस करना चाहती हूँ, दैट इज फॉर श्योर। और बहुत सारा काम आएगा, आई एम श्योर। सो मच ऑफ इज ऑलरेडी कमिंग योर वे एंड सो मच मोर विल कम योर वे। आई आल्सो वांट टू आस्क यू प्रियंका, यू नो बिग बॉस talks so much about sometimes they highlight issues of body shaming, sometimes they highlight issues of mental health, and while I feel it's amazing, but the volatile of emotions is so much inside the house. Sometimes you think वो जो मेन मुद्दे हैं, जैसे मुझे लगता है मेंटल हेल्थ बात होनी चाहिए, बॉडी शेमिंग बात होनी चाहिए, वो शायद अंडर द कार्पेट हो जाती है। और शो का क्योंकि फॉर्मेट एंटरटेनमेंट है तो थोड़ा सा मसाले की तरफ चला जाता है वो। Do you think it is something that we need to fix with our reality shows?
आई थिंक डेफिनेटली, क्योंकि इस चीज़ पे मैं भी अग्री करती हूँ। जैसे एक दो बारी मैंने भी चीज़ बोली थी कि बॉडी शेमिंग कर रही है, नो बडी सेइंग एनीथिंग, या कर रहा है जो भी, मैंने भी चीज़ बात की थी, मुझे याद नहीं है कब, लेकिन हाँ ड्यूरिंग व्हेन आई वाज इन द हाउस। बट इस चीज़ पर कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई थी, तो मुझे भी थोड़ा सा लगा कि यार कुछ चीज़ें होती है कि ना, जैसे बोलते ना कि आप अपने जैसे अगर आपका बेटा है तो आप उसे कैसे पाल पोस रहे हो, बोलते हैं ना, हाँ पाल पोस रहे हो, उसकी परवरिश कैसी है उस पर डिपेंड करता है। तो यही एक कि वो वैसा ही एक इंसान बनेगा। तो अगर नेशनल टेलीविजन सब देख रहे हैं, ऑलमोस्ट बिग बॉस तो ऑलमोस्ट लोग देखते हैं, तो बिग बॉस में अगर इस चीज़ को हम उठा सकते हैं तो विच इज़ अ ग्रेट थिंग। लोगों को शायद ये दिमाग में जाएगी कि नहीं, यू शुड नॉट डू दिस, ये गलत चीज़ है। अगर ये चीज़ हाईलाइट होगी तो वेरी गुड, आई मीन आई एम इन फेवर ऑफ इट। Big Boss gives you a lot of fame, a lot of following. Does it also translate to work? डेफिनेटली जब मैं बाहर आई घर से तो एक अलग माहौल मुझे देखने को मिला। जैसे मैं गई थी वो जो माहौल था उससे कहीं ज़्यादा अलग देखने को मिला था। इतना प्यार मिल रहा था लोगों से, एंड डेफिनेटली मुझे काफ़ी अच्छे काम के लिए भी अप्रोच किया गया है। तो जैसा पहले जो सीन था बिफोर बिग बॉस, वो बाद में बहुत चेंज हो गया। ओके, सो देयर इज़ अ कन्फेशन। जब मैं अंदर जा रही थी ना तो मुझे बोला, मतलब ऐसे पहले था ना कि यार बिग बॉस में जा रहे हो सकता है आपकी इमेज पता नहीं कैसी निकल के आए, काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। डेफिनेटली मेरे दिमाग में थॉट आया था, बट आई एम टेलिंग यू, बिग बॉस से बाहर आने के बाद में मैं इस चीज़ की बहुत वैल्यू करती हूँ। एंड आई थिंक बिग बॉस में जाना मेरी लाइफ का एक बहुत अच्छा डिसीजन था कि मैं वहाँ गई, एंड देन एवरीथिंग चेंज नाउ। तो मुझे काम को लेकर भी डेफिनेटली बहुत फ़ायदा हुआ है आफ्टर बिग बॉस। काफ़ी चीज़ें, मतलब जैसे पहले आपको खुद शायद कभी पिच करना पड़े, अप्रोच करना पड़े, अब शायद वो भी इतना ज़्यादा नहीं हो पाता कि खुद आपके पास आ जाता है। सो लकीली आई फील गुड अबाउट इट कि मैं गई बिग बॉस के घर में, आई टुक द डिसीजन। सो या अमेजिंग। शायद घर में किसी से दोस्ती ना कर पाई हो, अभी बाहर आके करना चाहती हैं? अभी जैसे टीना से मेरी बात होती है, और टीना से मेरे एंड ऑफ द डेज आई थिंक उससे अच्छी बॉन्डिंग भी हो गई थी हमारा, मतलब काफ़ी अच्छा बॉन्ड था। सो डेफिनेटली टीना के साथ आई एम इन टॉकिंग टर्म्स, बट हाँ हम नहीं मिल पाते बिकॉज शी इज़ शूटिंग, और वो मुंबई से थोड़ा बाहर भी रह रही है, तो इतना मिलना नहीं हो पाया अभी तक हमारा। बट डेफिनेटली टीना से मैं हूँ, और अर्चना भी कॉल अपने आ ही जाते हैं अर्चना के। हाँ। तो और मैंने ग्रजेस लेकर किसी के लिए नहीं रही हूँ, तो कोई मुझे कॉल करेगा डेफिनेटली मैं उससे बात करूँगी। ऐसा नहीं है कि नहीं इसने मेरे साथ ऐसा किया था, बीत गया सो हो गया ना, छोड़ो। हाँ, इट्स फाइन, वो शो था। Will you ever pick up the call on Nimrit and say, hey, let's talk? But why would I do that? She is happy, she is busy working. See, मैं हमेशा ना एक चीज़ के फेवर में रहती हूँ कि कोई आपको ना पसंद करता है ना, तो ज़रूरी नहीं है आपको उसको पसंद करवाना ही हो। इट्स फाइन, दुनिया में अलग अलग लोग होते हैं, कोई एक आपको पसंद करेगा, कोई एक आपको ना पसंद करेगा, टोटली ओके। आप जिस तरह के इंसान हो उनको वो अच्छा लग रहा है, लेकिन दूसरे पर्सन को आप इस तरह के इंसान नहीं पसंद हो, तो दैट इज़ ओके। सो फॉर मी लाइक आई एंड निमृत वी बोथ आर लाइक, उसको नहीं समझ में आती थी मेरी वाइफ, तो क्यों परेशान करना उसको फ़ोन करके, छोड़ो ना। या व्हेन शी डज, मतलब आई मीन आई डोंट नो राइट, मैं किसी पर ऐसे बर्डन नहीं बनना चाहती। फेयर इनफ। खतरों के खिलाड़ी क्यों नहीं कर रही आप? थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन था। डायरेक्ट हो गए, बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट था। अभी सी कुछ पता नहीं है, एंड अभी एक रियलिटी शो किया है, सो आई कांट से एनीथिंग राइट नाउ। आई मीन एट द एंड एक्टिंग करनी है ना यार मुझे, आई मिस एक्टिंग। तो या माई वर्क इज एक्टिंग, सो थोड़ा सा मैं भी सोच रही हूँ कि उस पर ध्यान दूँ। कुछ चल रहा है उस स्पेस में, एक्टिंग स्पेस में। मुझे याद है जब आप निकल रहे थे बहुत लोग बोलते आप शायद डंकी करोगे शाहरुख के साथ, सलमान के साथ मूवी करोगे, एंड आई रियली होप एंड प्रे ऑल दैट कम्स ट्रू। बट हो रहा है कुछ? टच वुड, डेफिनेटली एज आई टोल्ड यू कि बातें चल रही है, बट देन ना वो चीज़ दैट व्हाट शुड आई से कि वो एक हाँ ये करना है, वो चीज़ चाहिए अभी। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द बेस्ट वन, एंड आई वोंट माइंड वेटिंग थोड़ा सा टाइम। ऑफ कोर्स कुछ पाने के लिए थोड़ा सा वक्त अगर लगता है तो इट्स फाइन। सो आई वोंट माइंड वेटिंग, बट द बेस्ट वन आई वांट। क्या करना चाहती हैं? डू यू हैव समथिंग इन माइंड? अभी सी मतलब क्योंकि ऐसा नहीं कि हाँ मैं अगर ये बोलती हूँ कि मैं OTT और मूवीज़ के लिए ही सोचूंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेफिनेटली टीवी से ही मैं बनी हूँ, टीवी से ही आगे बढ़ी हूँ, तो अगर मुझे कोई ऐसा रोल टीवी से भी मिला कि हाँ
बहुत ही एक अलग कैरेक्टर है एंड आई रियली वांट प्ले दिस, कुछ चैलेंजिंग मिला तो डेफिनेटली मैं टीवी के लिए भी सोच सकती हूँ, ऐसा नहीं कि टीवी नहीं करूँगी, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड अभी फ़िलहाल के लिए कि OTT या मूवीज़ में आई रियली वांट ट्राई दैट। होगा, वो भी होगा। एंड थैंक यू प्रियंका, दिस वाज अ लवली कन्वर्सेशन। आई विश आप जो चाहे आपको सब मिले। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Avinash. Thank you. Hey guys, so if you like this video, please like, share and subscribe to Pink Villa.